Welcome everyone. There are good news for Indian dairy farmers. The prices of SMP at the latest global trade auction has averaged at US dollar 2,865, which is highest since past 9 months. And the last high was touched in February 2020 when the prices were 2,900. Now this global price of SMP translates into around 215 per kg of Indian, which is much above the prevailing rupees 180 to 195 kg rate of SMP being realized by Indian dairies in local market. So it means there is no threat of import of SMP in India, but instead there is an opportunity to export SMP. Now coming to domestic market, let us talk about domestic market. Our SMP prices have already recovered from the lows of rupees 140 to 150 a kg 2 months ago. Presently, SMP prices are prevailing at 180 to 195 now. In fact, in northern region, milk powder is sold at rupees 215 ex plant plus taxes. Even the ex dairy prices of butter has risen from 200 to 265. Ghee prices have increased from 280 to 340 a kg. So our dairy market has picked up after Janmashtami. That was on 12th August. Since 12th August, all the prices of all dairy commodities are increasing. Hotels, restaurants and tea shops are gradually resuming operations. Trade is expecting that these high prices will continue at least till Dussehra on 25th October. And prices may continue to remain high till Diwali on 14th November. So we are in a scenario when global SMP prices are going up, which would be provide opportunities for export from India as well as. All this would help our dairy farmers who have seen procurement price of buffalo milk sliding from rupees 51 a litre in January 2020 to rupees 35 during lockdown period. And now buffalo milk prices have improved to rupees 40 to 42 rupees in northern belt. The current demand recovery, both domestic and global market price, have come at most opportune time for farmers. Good rainfall, good monsoon has already boosted fodder availability. Calving has also started. If milk procurement prices remain better during next couple of months to what they are recently, it would be a big twin blessing for farmers. So जो लोग हिंदी भाषी है उनको कहूं कि बहुत सुनहरा मौका चल रहा है इस समय. प्राइसेस बहुत दबी हुई थी पर पिछले अगस्त के बाद जन्माष्टमी के बाद बढ़ते जा रही है. ट्रेड के पास स्टॉक बहुत कम हो गया है. फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग पितृपक्ष की वजह से बंद था, वो चालू हो गया. अभी अब प्रोडक्शन, फ्रेश प्रोडक्शन चालू हुआ है. ये एक बहुत अच्छा मौका था. जो प्राइस दबी हुई थी, समटाइम्स जनवरी में अपन लोग बोल रहे थे कि अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, पर वैसी नौबत नहीं आई है. और आज की तारीख में प्राइस बहुत अच्छी है. काविंग भी चल रहा है. फीड एंड फॉडर सिचुएशन भी अच्छी है. मॉनसून अच्छा था उसकी वजह से. तो इस बैकग्राउंड में अब अपन लोग तीसरा वेबिनार करते हैं. और तीसरे वेबिनार में अपने साथ आज का जो वेबिनार है उसमें की स्पीकर नम्रता शर्मा जी हैं. वेरी टैलेंटेड मल्टी स्किल्ड पर्सनालिटी. आपको उनके बारे में इंट्रोडक्शन मेरे कलीग हर्षेंद्र जी देंगे. नमस्कार. Over to Harshendra ji. Thank you. Welcome to this third edition of the marketing webinar series. Our topic for discussion today is augmentation of milk product sales by leveraging on the marketing channels and market development. Today, we will focus on Kolhapur District Cooperative Milk Producers Union Limited, better known by its brand name Gokul. Gokul is a famous brand in Western India. We have with us the speaker for the day, Namrata Sharma. She has
very good experience in product launches and in managing of distribution channels. Yes, over to Namrata now. Yeah, so good afternoon, everyone. So thank you for the introduction, sir. First of all, I would like to thank you NDDB team for giving us this opportunity to all the cooperative dairies to share their experiences and learnings regarding their marketing, what marketing strategies they have used in market. So we are sharing this on this forum through this webinar today. So this is a great opportunity for all of us. So I would like to start the webinar now with a brief introduction about the company. So कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड, जो कि बहुत ही जानी मानी एक ब्रांड है आज की डेट में, गोकुल नाम से जो पॉपुलरली नोन ब्रांड है आज दूध के लिए. कोऑपरेटिव डेयरी जो है ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 मार्च 1963. Talking about the company overview, so Gokul is very famous brand today in milk sale. We are the highest selling brand. We are highest milk selling brand in Maharashtra. Gokul has modern 15 lakh liter per day capacity dairy plant, satellite dairy. We have a kettle feed plant with we have 4 chilling centers. And Kolhapur में जो है हमारा गोकुल का head office है, and we have branches in Pune and Mumbai. So today Gokul is a leading dairy cooperative in Maharashtra. अभी गोकुल में दूध के लिए everyone knows. So we are famous for Gokul has achieved this quantitative growth of milk without compromising on quality of milk as well as the products. So milk में we are the highest in category, highest in sale. But abhi just through this webinar I want to share with like how we have augmented the product sale using this brand value, using this brand name. So customer जो अभी connect करता है with the brand is for Gokul liquid milk, and Gokul milk it has proved itself as a symbol of purity in the heart and mind of the customer. So but nowadays, as we know, companies are moving from liquid milk to they are diversifying the portfolio and they are entering into the value added product market also. So now Gokul is also shifting its focus from liquid milk marketing to product marketing, and using its loyal customer base from last 58 years. Since last 58 years, we have been providing service to these customers. So Gokul has already have a loyal customer base. Now, how we can leverage this brand name or the brand value to make the same difference in the heart and mind of the customer for products also. So this is what we will be covering in this seminar. Now, for leveraging the brand value for products, Gokul ने instead of focusing on product and processes, तो जो कि एक organization level, organization point of view से ना सोचते हुए हमने एक from 4P we have shifted our focus to 4A. तो जो organization point of view से ना सोचते हुए we have thought from customer point of view. First of all, it is very important for us, for a company to know क्या उस जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके जाने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात कर जिसका हम लॉन्च करने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट वो सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर को अवेयर हैं, कस्टमर उनके बारे में अवेयरनेस है, क्या उनको एक्सेसिबिलिटी है, क्या उनको अफोर्डेबिलिटी है, and whether the products are acceptable or not by the customers. So we have shifted our focus from 4P to 4A. Basically to create the awareness to the accessibility, the affordability and the acceptability. So we have covered basically our focus areas was on these 4 A's. Awareness के लिए awareness क्या होता है, product के बारे में knowledge and brand के बारे में awareness. Brand awareness already market में है, customers को already पता है कि yes, this is the Gokul brand and these are the Gokul brand's product. But प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में कस्टमर को पता होना चाहिए. तो व्हाट मीडियम्स और व्हाट चैनल्स वी हैव यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस इन कस्टमर्स माइंड इज थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू स्टॉल्स, थ्रू इवेंट्स, टीवी शोज, कियोस्क एक्टिविटीज. In order to increase the brand visibility and the customer engagement, we have used the awareness channel. फॉर एक्सेसिबिलिटी को अगर हम टैप करें तो एक्सेसिबिलिटी होता है कि आप प्रोडक्ट अवेलेबल भी करना है कस्टमर के पास, एंड इट शुड बी कन्वीनियंट ऑल्सो फॉर द कस्टमर टू टेक द प्रोडक्ट. सो हाउ गोकुल हैज री इन्वेंटेड द रीच
how Gokul has reinvented the dealer network, the distribution channel. So that we will be covering in this webinar. So we have increased the dealer network, we have increased the point of sales, we have used the multi-channel distribution, which is there in the topic itself, that we have used the multiple channel distribution for product launch, and we have used different segments for providing for the supplying the product to the customer. Then we have focused on affordability part, जिसमें कि प्राइसिंग डिसीजन आता है. कोई भी अगर हम प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाना है हमको, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. It should not be very on extreme side. It should not be very low. It should not be very high. तो किस तरह से pricing decisions लिए गए. Then acceptability. After awareness, accessibility, affordability, acceptability of the product is very important from customers and customers point of view. So that we will be discussing next. Next slide, please. Yeah. So for awareness part, अभी हमको प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ाना है, ब्रांड अवेयरनेस, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी है. तो फर्स्ट थिंग विच वी डिड इज वी हैव रीइन्वेंटेड आवर वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट, एंड वी हैव ट्राइड टू शेयर द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. गोकुल के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में मैक्सिमम उनका पिक्चर्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू. So all the information required was being shared on the website, online website. And then apart from this, जो दूध के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ साथ हमने एक प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं उनका भी हमने वेबसाइट पे अपना डिटेल्स दिया. देन उसके बाद हमने फेसबुक पे वी हैव कवर्ड द सोशल मीडिया पेज ऑल्सो. फेसबुक पेज हमने पूरा एक स्पेसिफिक टीम हमने इसमें बिठाई है जो कि इसको हैंडल करती है ऑन रेगुलर बेसिस, एंड they are now continuously updating the information of products and whatever happenings in the company at the organization level, whatever changes we are making in terms of product structure, that we are used to update in Facebook nowadays. For example, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं पनीर पराठा, previous slide please. पनीर पराठा के लिए अभी हम लोगों ने यहाँ जैसे पनीर प्रमोट किया, बटर प्रमोट किया. कर्ड के लिए हम लोग क्यों, एक कस्टमर गोकुल का कर्ड क्यों लेना चाहिए उसको, तो क्या उसमें यूनिक फीचर है, क्रीमी है, रिच टेस्ट है. तो इस टाइप से हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस के लिए डाले. अभी जो डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, गणेश चतुर्थी है, मकर संक्रांति है, न्यू ईयर है, उसमें वी आर कंटिन्यूसली इन टच विद कस्टमर्स एंड प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स. रिपब्लिक डे पे हम लोगों ने इस तरह का एडवर्टीजमेंट दिया. देन गुरु पूर्णिमा पे वी हैव गिवन दिस जीवन के हर गुरु को शुद्ध घी का भोग लगाए. तो घी का हमने इस तरह से प्रमोशन किया ऑन गुरु पूर्णिमा. सो वी आर कवरिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजिंग और प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो वो हैप्पी वुमेन्स डे 8 मार्च को हमने जैसे फर्स्ट पिक्चर इज डिपिक्टिंग द woman, an independent woman which is stronger, drinking Gokul milk. So milk पीकर आप strong बनते हैं, independent बनते हैं. This is being depicted by this picture. So we have acknowledged and appreciated the consumer dairy farmers also, the consumer women also, as well as women who are working 24/7 365 days on the back end. जो हमारी डेयरी फार्मर्स हैं जो 24 आवर्स काम कर रही हैं टू मेक श्योर कि गोकुल दूध सुबह कस्टमर तक पहुंचे. तो वी आर वेरी थैंकफुल टू them also, and we have with them also Women's Day. So we always make our presence to acknowledge and appreciate the work of the customer as well as dairy farmers. Then Gokul stalls. We also ensure कि हम लोग करते हैं कि हर जगह जहाँ पर भी पब्लिक प्लेसेस हो, जहाँ पर कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हो, वहाँ पर गोकुल का हमेशा हम लोग प्रोडक्ट का स्टॉल लगाना हमने स्टार्ट किया. उसमें हम लोग अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. हमारी टीम रहती है जो कि प्रोडक्ट सेल भी करते हैं हम लोग, प्लस एक्सप्लेनेशन देते हैं सारे प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में, प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए. सो इस तरह के हम लोग स्टॉल्स लगाते हैं जिसमें डिजिटली ऑल्सो वी यूज टू पोर्ट्रे दी प्रोडक्ट्स. एंड हम लोग जैसे कॉर्नर पर भी आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स हमने लगाए हुए हैं. और अगर मिल्क में वेरिएंट है नया जो लॉन्च कुछ करने वाले हैं तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्प्ले में वो प्रमोशन में रहता है. तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज हम लोग ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए करते हैं. टीवी शोज भी गोकुल ने स्पॉन्सर किया था.
और दिस वाज द वेरी एफिशिएंट चैनल विच वी यूज्ड, जिससे कि कस्टमर फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है टीवी में। टीवी सब लोग, अभी जैसे मराठी शो है ये चला हवा ये उद्या, इसको हमने स्पॉन्सर किया था और इसमें हमने एज अ गिफ्ट हैम्पर वी हैव गिवन द गोकुल प्रोडक्ट्स बास्केट, तो जिससे कि लोगों को ये भी पता चला कि एंड इवन वी आर गिविंग इट टू सेलिब्रिटीज, सो दिस इज अ वेरी इम्पैक्टफुल ऑन कस्टमर्स माइंड कि गोकुल के दूध के साथ साथ ओके दिस इज द प्रोडक्ट बास्केट ऑफ एंटायर बास्केट ऑफ द गोकुल प्रोडक्ट्स। सो ये एक बहुत एफिशिएंट तरीका था टू रीच टू आवर कस्टमर्स माइंड अबाउट गोकुल प्रोडक्ट्स। Next slide. So we are already always engaged with our customers. We are always on ground with our customers, जिसमें हम लोग different events में भी हम लोग participate करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो गोकुल का सबको हमने टी-शर्ट दिया था दही हांडी इवेंट में, और यहाँ पे हमने स्टॉल्स लगाए थे, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, लोगों को समझाया और जो भी अवेयरनेस प्रोडक्ट नॉलेज देना था वो भी एक किया है। ये लास्ट ईयर का फोटो है। ये इस साल जैसे अभी कोविड की वजह से हम दही हांडी वगैरह जो पब्लिक जो क्राउड पब्लिक जो इवेंट्स हैं वो नहीं हो पाए हैं, तो उसकी वजह से हमने ये ऑनलाइन प्रमोट किया है कि गोकुल दही सबसे सही, एंड दही हांडी में जैसे कि गोकुल इज जैसे रिलीजियस एस्पेक्ट भी हमने इसमें जोड़ दिया है कि कृष्ण भगवान जो गोकुल दही खाते हुए, तो वो भी हमने एक दिखाया है। और ये बेसिकली फॉर कप दही प्रमोशन एंड पाउच दही प्रमोशन के लिए हमने दही हांडी पे किया था। इसके अलावा हम लोग कस्टमर डायरेक्ट जो कस्टमर्स हैं उनके साथ भी हम लोग एंगेजमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड, जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट का टेस्टिंग करवाते हैं, और जैसे सोसाइटी के गेट के बाहर जाकर, कहीं बस स्टैंड के सामने, कोई जो कनेक्टेड प्लेसेस होते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर गोकुल अपना कियोस्क एक्टिविटीज हमेशा इंश्योर करता है, एंड वी ऑलवेज इंश्योर कि प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाएं, कस्टमर से फीडबैक लें कि किस तरह का उनको प्रोडक्ट कैसा लगा। और ये भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, इफेक्टिव टूल है to create awareness among the customers, and this helps on also in word of mouth publicity of the product. Next, not only our channel, not only the customers, but also we try to be in touch with our channel partners also, जो हमारे distributors हैं, जो retailers हैं, जो हमारे जो दूध बेचते हैं जो retailers, तो उनको भी product के बारे में knowledge होना चाहिए, then only they will be promoting the product. So we हम उनको पैम्पलेट वगैरह देते हैं, रेगुलर प्रमोशनल मटेरियल्स देते हैं along with our visiting card, so that they can easily communicate directly to us for their queries or any help or any concern regarding the product. So अभी जैसे दूध में कैसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर पे हमारा ज़्यादा होल्ड होता है, रिटेलर पे उतना होल्ड नहीं होता है, बट रिटेलर पे होल्ड बनाने के लिए हम लोग प्रोडक्ट मार्केट में रिटेल लेवल तक का होल्ड बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमको डायरेक्ट जो हमारे पहले कस्टमर जो बेस था, जो चैनल पार्टनर बेस था रिटेल लेवल पे मिल्क के लिए, उन्हीं को ही हमने टैप किया एंड उनको हमने प्रोडक्ट के लिए भी एनकरेज किया, एंड वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. So apart from awareness, now next come accessibility. Accessibility क्या होता है कि availability plus convenience हमको provide करना है, एंड इसके लिए हमने अपना पूरा जो चैनल था वो रीइन्वेंट किया है. एक चैनल आइडेंटिफाई करना, चैनल डेवलप करना, देन अदर प्लेटफॉर्म्स जिससे कि कस्टमर तक इजीली हम लोग किस तरह पहुंच सकते हैं. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे तरीके के होते हैं. डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग थ्रू इंटरमीडियरीज जो कि एक ट्रेडिशनल चैनल है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, जो कि मिल्क के लिए यूज होता है. बेसिकली मिल्क में हम लोग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं. नाउ मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिवर्स चैनल. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. बट अभी जिस तरह का अग्रेशन है मार्केट में, जिस तरह से बाकी ब्रांड्स अग्रेसिवली काम कर रही हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी फार फ्रॉम अस. सो in order to catch the pace of the market, we have to go with the multi-channel distribution. So this is the channel which we have selected for our product distribution. So multi-channel distribution होता है कि आप सेम टाइम पर आप डिफरेंट चैनल्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकें. तो so availability as well as convenience को keeping in mind both these things, you are taking the product to the customer as per his availability and as per the availability and convenience. So जनरल ट्रेड भी हमने टैप किया है, मॉडर्न ट्रेड भी हमने टैप किया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमने टैप किया है.
सोशल मीडिया पे हमने अपने प्रोडक्ट्स को उसके बारे में नॉलेज बढ़ाया है, एंड होम डिलीवरी ऑल्सो हमने टैप किया है। तो ये 5 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने इंश्योर किया कि एवरी टाइप ऑफ चैनल के थ्रू जिस तरह से भी हम कस्टमर तक पहुंच सके, वी हैव इंश्योर्ड दैट द प्रोडक्ट शुड बी alive on all these platforms. इसमें आवाज कहाँ आ गई? Next slide please. So अभी हमने जब चैनल आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, चैनल डेवलप कर लिया है, चैनल को डेवलप करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मार्केटिंग लेवल पे, स्ट्रक्चर लेवल पे, प्रोसेस लेवल पे बहुत सारे चेंजेस होंगे जो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल में करने पड़ेंगे, एंड सेम वी हैव डन फॉर आवर प्रोडक्ट्स आल्सो. So motivational training sessions for employees. Employees are the very important part of the organization. So इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर हमें ये प्रोडक्ट लेके जाना है मार्केट में तो आपको क्या क्या नॉलेज, पहले तो उनको पता होना चाहिए सारा प्रोडक्ट के बारे में. देन उनके पास उनको एक हर प्रोडक्ट का एक यूएसपी उनको पता होना चाहिए, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट हम बोलते हैं वो पता होना चाहिए. सेल्स टेक्निक्स उनको आनी चाहिए, किस तरह से मार्केट में जाना है, रिटेल लेवल पे क्या बात करना है, किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वो सारी टेक्निक्स उनको आनी चाहिए. तो उनके लिए हम लोग मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, जिसमें कि सेल्स इफेक्टिवनेस प्रोग्राम वर्कशॉप किया हमने, डिफरेंट डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सो टू एंश्योर द हैप्पी डिलीवरी. Second part is logistics part. Logistic part is very, very important. Timely delivery is very, very important and essential. So logistics हमने पूरा redefine किया है अपना structure. हमने पूरा मुंबई मार्केट की अगर मैं बात करती हूँ तो मुंबई को हमने area wise divide करके we have done the route mapping, and then there was a special team for demand generation for supply of products. So पूरा reinvent किया गया है logistic part. Apart from logistic, inventory management to maintain the FIFO, stock management, demand planning, और ये सारी चीजें भी बहुत important है. तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने पूरा रिवाइज किया है अपना चैनल, जिससे कि हैप्पी डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी एंड करेक्ट डिलीवरी ये हम लोग इंश्योर कर सके, एंड प्रोडक्ट्स जो है वो सही टाइम पर, सही जगह पर, सही क्वांटिटी में एक कस्टमर तक पहुंच सके. सो अभी गोकुल ने और क्या डिफरेंट एक एक्टिविटी या एक इनिशिएटिव लिया है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट सेल, या उसको प्रोडक्ट को और कस्टमर तक कैसे इजीली पहुंचाया जा सके, उसके लिए क्या हमने एक यूनिक स्टेप लिया है. तो गोकुल ने ऑलरेडी हमारे साथ 2 एडवर्टाइजिंग फर्म्स थी, एक सातारा में, एक मुंबई में. सो दे वर ऑलरेडी कनेक्टेड विद गोकुल फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन मार्केट. सो उनको मार्केट डायनेमिक्स के बारे में पता है, एंड दे वर वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ गोकुल प्रोडक्ट्स. So we have onboarded these 2 advertising firms, we have motivated them, and we have given budget to actually indulge in sales and marketing. तो ये दोनों फर्म को हमने मोटिवेट किया कि क्यों नहीं आप एज अ CNF एजेंट या एज अ सुपर स्टॉकिस्ट आप काम करें, एंड हमारे प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में बढ़ाएं. तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि इससे हमें कंबाइंड सेल जनरेशन एंड प्रमोशन एट ए सेम टाइम फ्रॉम द सिंगल सोर्स, ये हमको हेल्प हुआ है इसके थ्रू. तो इस मेन फोकस जो हमारा इस चैनल के थ्रू रहा है वो है जनरल ट्रेड सेल्स बढ़ाना, जो रिटेल चैनल है, तो जिसमें कि सबसे ज्यादा कस्टमर फुटफॉल हमें मिलता है. तो जनरल ट्रेड की सेल बढ़ाने में और होम डिलीवरीज वगैरह पहुंचाने में, अभी जैसे ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि बहुत सारा शॉप्स क्लोज हैं, बहुत हम लोग कस्टमर तक इजीली नहीं पहुंच पा रहे थे थ्रू आवर एग्जिस्टिंग चैनल पार्टनर. तो हम लोगों तो इसीलिए ये 2 फर्म्स को की हेल्प से हम लोगों ने GT प्लस होम डिलीवरीज दोनों को हमने टैप किया, एंड द बेसिक फोकस वाज ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस प्लस सेल्स, बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम. तो ये जो एजेंसी है ये हमको सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. एक फील्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम है जिनका रियल टाइम ट्रैकिंग होता है, जो मार्केट में जाते हैं ऑर्डर लेने के लिए रिटेल से, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, प्रोडक्ट का प्रमोशनल मटेरियल रिटेलर तक पहुंचाना, ये सारा फंक्शन जो है एक्टिविटीज कवर होता है थ्रू दिस एजेंसी. एंड दिस इज टोटली टारगेट बेस्ड. हमने उनको टारगेट बेस्ड ही हायर किया है. जितना टारगेट किया जाएगा, जितना टारगेट अचीव होगा, उतना ही उनका उसी बेसिस पर ये फर्म को पेमेंट
गोकुल करता है. तो we are yet to declare it as a success story, but yes, there is a considerable increase in the sales in our reach. We are able to access to more than 2,000 retail outlets in Mumbai through this agency. Yeah, so accessibility में first point was channel development. जिस तरह से हमने channel identify किया, dual multi-channel distribution हमने एक strategy use की, multi-channel distribution की to reach to customer in each and every possible way. Second thing, accessibility में हमने गोकुल on wheels एक हम लोग initiative लिया था, and Gokul was very fortunate. This was launched actually on 16th March 2020 and 23rd March को लॉकडाउन हो गया था. तो ड्यूरिंग कोविड टाइम दिस इनिशिएटिव वाज वेरी हेल्पफुल. जो 2 मोबाइल वैन्स हमने यूज किया था फॉर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन कोल्हापुर एंड नियर बाय विलेजेस. तो हमने ये कोविड के टाइम पे हम लोगों ने इस वैन के थ्रू प्रोडक्ट एज वेल एज मिल्क दोनों हम लोगों ने कस्टमर तक पहुंचाए. एंड मंडे टू सैटरडे डिफरेंट रूट्स थे जो ऑलरेडी एंड मेजर कनेक्टेड प्लेसेस पे these vans used to stop and supply products as well as milk to the customers as well as retailers. So मोबाइल वैन्स का हमने ये मोबाइल वैन हमने यूज किया था. अभी एक वैन हमने कोल्हापुर में और एक वैन पुणे में किया है, इससे कि ब्रांड अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा. मूविंग वैन का जो इससे ब्रांड विजिबिलिटी भी बढ़ा प्लस अवेयरनेस बढ़ा एंड कस्टमर्स को हम लोग इजीली पहुंच पाए ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स. वी वर एबल टू रीच टू द कस्टमर्स इन मोस्ट एफिशिएंट वे. तो थर्ड, एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने जो प्लेटफॉर्म यूज किया वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, जो कि अभी कोरोना के टाइम पे भी हमको बहुत हेल्पफुल रहा. ऑनलाइन हम लोग जितना रिटेल लेवल पे पेनिट्रेशन हम लोग नहीं कर पाए उतना हम लोगों ने ऑनलाइन टैप किया है सेल्स. बिग बास्केट में जैसे बहुत ही नोन प्लेटफॉर्म है, उसमें हमने प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए थे. इंडिया मार्ट में हमने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. ऐसे डिफरेंट साइट्स पे हमने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए एंड थ्रू दैट वी वर एबल टू रीच टू द कस्टमर डायरेक्टली एंड एट देयर कन्वीनियंस. सो बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हैं जिससे कि ऑनलाइन ग्रोसरी जो खरीद सकते हैं आप, उसमें भी वी हैव मेड श्योर दैट गोकुल प्रोडक्ट्स आर इजीली अवेलेबल टू द कस्टमर्स. होम डिलीवरीज, नाउ अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वी हैव ऑल्सो एनकरेज आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स जिससे कि वो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करें कस्टमर्स को. तो गोकुल ने डायरेक्टली होम डिलीवरी नहीं प्रोवाइड किया है, बट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर एंड थ्रू दैट एजेंसी which we have hired for in Mumbai and Satara. So through these 2 platforms we have encouraged them to go for home deliveries also, and this was also very impactful during COVID time. जो total sales था हमारा उसमें 10% contribution was from home deliveries also only. Next is affordability. So product should be affordable also to the customers, जिसके लिए pricing decisions पे हमने काम किया अपना. First of all, value, keeping in mind the customer should feel the value for money for your product. So different price points and packaging options हम एक बहुत important key factors होते हैं जो कि price decide करने में help करते हैं. तो पहले क्या एक रेगुलर टाइम पे आपको मार्केट के अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस चेंज करने पड़ते हैं प्रोडक्ट के. एंड देयर आर डिफरेंट अदर फैक्टर्स आल्सो, जैसे परचेजिंग पावर है, मार्केट ज्योग्राफी है, कॉम्पिटिटर एक्शंस है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है. सो ऑल दीज फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. तो सपोज आप किसी मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे 10 रुपए से ज्यादा कोई वो प्रोडक्ट लेगा नहीं, लेकिन अगर आपका वो कॉस्टिंग में नहीं बैठ रहा है तो यू कैन चेंज दी पैकेजिंग पॉइंट. सपोज 100 ग्राम का है तो आप 85 ग्राम के लिए चले 85 ग्राम में वो प्राइसिंग बिठा सकते हैं. तो इस तरह के डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं और वो सारी चीजें माइंड में रखते हुए ही हमें प्राइस अपने डिसाइड करने हैं. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेबिलिटी. एक्सेप्टेबिलिटी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी. फर्स्ट इज फंक्शनल एज वेल एज साइकोलॉजिकल. फंक्शनल तो हमको सबको पता है, जो ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट्स में वो फंक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं कस्टमर का. बट देयर आर अदर एट्रीब्यूट्स आल्सो, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट, जो कि कस्टमर का इमोशन या सेंटीमेंट को इफेक्ट करें. आप एक ब्रांड के साथ अगर जा रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो कनेक्ट विद द कस्टमर्स इमोशनली. तो जैसे कि ये कैडबरी का मैंने अगर एग्जाम्पल लिया है,
यहाँ पे इन्होंने एक मॉन्डेलिस ब्रांड जो कैडबरी डेयरी मिल्क ब्रांड है, उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ दे हैव पार्टनर्ड एज देयर गुडनेस पार्टनर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ से थैंक यू इनिशिएटिव. So sweetest way to say thank you is for Cadbury. So they have changed their name to Cadbury from Cadbury Dairy Milk to Cadbury Thank You. अब इसमें थैंक यू जो हम बोलते हैं कब किसी को, तो वो एक स्वीटेस्ट जेस्चर होता है जो हमने एक प्रोडक्ट जब हम किसी को बोलते हैं तो कैडबरी हैव टैप्ड दैट जेस्चर एंड फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट. तो अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो यू शुड गिव अ कैडबरी. सो दे आर कनेक्टिंग इमोशनली विद द कस्टमर that you want to, if you want to say thank you, then you should take our product. So emotional connect is very very necessary. गोकुल में जैसे आपने अदर ब्रांड्स में भी देखा होगा, मिल्क मुस्टैश ये का एडवर्टीजमेंट जो किया जाता है. फॉर एग्जांपल हमने ये फादर्स डे पे किया था. यू मिल्क मुस्टैश इज अ सिंबल ऑफ strongness, so you become stronger, you become your father's strength. So this is the emotional sentiment which was depicted by these pictures. देन गोकुल अनुभव सर्वोत्तम दुधाचा अभिमान महाराष्ट्राचा. यहाँ पर भी एक इमोशनल कनेक्ट है जो कि कस्टमर फील कर सकता है कि ये हमारे होम टाउन की ब्रांड है, हमारा महाराष्ट्र की ब्रांड है. तो in this way also customer gets connected with the brand. And here we have depicted the images of products to promote more, जिससे कि हम प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बता सकें और जिससे कस्टमर को एक फील आए कि गोकुल के दूध के साथ ये प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं और ये भी हमारी ही ब्रांड के प्रोडक्ट हैं. अदर एक्टिविटीज इनको छोड़ के और क्या एक्टिविटीज गोकुल ने किया है वो है पोस्ट सेल एक्टिविटीज. पोस्ट सेल एक बार कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच गया है उसके बाद भी यू शुड बी ऑलवेज इन टच विद द कस्टमर, वेदर इट इज योर चैनल पार्टनर और कस्टमर, यू शुड ऑलवेज बी इन टच विद देम. सो हम लोग एक ब्लाइंड टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स का ऑन फ्रीक्वेंट टाइम. तो जैसे ये हमने कर्ड का एक दही का टेस्टिंग करवाया था, उसमें हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के दही लेते हैं एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे वी आस्क कस्टमर टू गिव रेटिंग टू द प्रोडक्ट एंड द रिपोर्ट ऑफ दिस होल टेस्ट इज गिवन टू आवर द मैनेजमेंट, द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट. एंड वो डिसाइड करते हैं कि कस्टमर का एक बाइंग पैटर्न क्या है, कस्टमर किस तरह से क्या एट्रीब्यूट देख रहा है प्रोडक्ट में एंड जिसकी वजह से उन किस तरह के प्रोडक्ट्स कस्टमर को पसंद आ रहे हैं, ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो वो प्रोडक्ट में होना चाहिए. सो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं. इसके अलावा वी आर ऑल्सो एक्टिव विद कुकिंग शोज जो आते हैं आजकल. जैसे कोरोना के टाइम पे सब लोग कुकिंग में बहुत ज़्यादा सबने इंटरेस्ट लिया, तो कुकिंग शोज में एक बताया जाता है, कभी ब्रांड प्रमोशन किए जाते हैं जैसे कि आप ये ऑयल यूज़ करो, आप ये बटर यूज़ करो तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा. तो उस तरह से हमने कोल्हापुर में कुकिंग शोज की जो उज्ज्वला कुकिंग क्लासेस वगैरह, इनसे हमने टाई अप करके भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया है. सो गोकुल हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट हैज ऑलवेज बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी. So apart from distributing, we have distributed like during COVID, we have distributed bags, masks, gloves, sanitizer, face shield, t-shirts, iCards. So apart from distribution of all these items to the distributors, Gokul has ensured daily free milk supply to these institutions like blind school, old age homes, underprivileged children, homeless women. So जो नीडी पीपल हैं जिनको दूध का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है और कोविड के टाइम पे और डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी, तो इनको हमने वी हैव इंश्योर्ड टू सप्लाई डेली फ्री मिल्क गोकुल. एंड वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड विद 2 free ventilators to Sadagiri Hospital and Research Center. So this also was an initiative. नाउ कोविड केयर का एक अवेयरनेस मैसेज जो सबने किया था कोविड के टाइम पे कि हल्दी का दूध पियो, उसके बारे में भी हमने अवेयरनेस मैसेज दिया. देन सरकार ने जो आपको नियम बताए हैं उसका पालन करें, बाहर नहीं जाएं, घर में रहें, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया. देन को हमने अपने कस्टमर्स तक मैसेज पहुंचाया कि संकलन से लेके प्रोक्योरमेंट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, वितरण तक पूरी जो एक केयर है वो ली जाती है गोकुल दूध में. लेकिन फिर भी आप अपना जो दूध का थैली है वो धोकर ही यूज करें और अपने हाथ को 20 सेकंड तक धोएं. इस तरह का मैसेज भी, अवेयरनेस मैसेजेस भी हमने प्रोवाइड किए. देन गोकुल इज ऑलवेज इन न्यूज में, हमेशा गोकुल रहता है
जिससे कि एक कस्टमर कनेक्ट और ब्रांड अवेयरनेस रहता है, कस्टमर को पता ही रहता है गोकुल प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में। तो अभी 6th of July को देयर वाज एन वेबिनार ऑन नव भारत फ्रॉम नव भारत वाइब्स। तो इसमें हमारे एमडी सर का एक इंटरव्यू था उस ऑन कोविड-19 फ्यूचर ऑफ डेयरी सेक्टर, इन विच इसमें उन्होंने बहुत ये बात किया कि कोविड से पहले क्या सिचुएशन थी, कोविड के बाद क्या सिचुएशन थी, हाउ कोविड हैज अफेक्टेड दी फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर्स, एंड हाउ कोविड हैज अफेक्टेड दी कस्टमर्स ऑल्सो। सो ये सारे टॉपिक्स पे इसमें एक इंटरव्यू में कवर किए गए, इसका लिंक भी मैंने नीचे शेयर किया है। So deciding the strategies. Now after keeping in mind all the 4 A's strategies like awareness, accessibility, affordability and acceptability, so companies should decide the strategy based on product and market. उसके लिए जैसे ये एनसॉफ मैट्रिक्स है, ये एक टूल है जिससे कि डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से कौन सी सिचुएशन में कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। Suppose on right hand side पे you can see the product existing new and market existing new. So if we want to take the existing products to existing market, then we should use the market penetration strategy, जो कि अभी हम गोकुल जैसे पाउच मिल्क के लिए कर रहे हैं, श्रीखंड, घी, बटर, पनीर एटसेट्रा के लिए कर रहे हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो दूध का मार्केट है, उसी में हम लोग अपना अभी प्रोडक्ट पेनिट्रेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रमोशनल थिंग्स, बाय यूजिंग 4 A's and by creating the product knowledge awareness. And then if you want to take the new product in existing market, then new product launch में अभी गोकुल 17th October को will be launching this Tetra Pak milk, UHT Tetra Pak milk name गोकुल select करके इसका नाम रखा गया है। So ये नया we are also focusing on product development. From traditional products we are moving towards modern products also, जिसका बहुत अभी मार्केट ग्रो कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 15% से मॉडर्न प्रोडक्ट्स का मार्केट ग्रो कर रहा है। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन टेकिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू मार्केट, सो दिस इज मार्केट डेवलपमेंट where you are moving to new markets for improving the sales of the product and for taking the product to the newer markets. So we have already, apart from Maharashtra, we have tapped Goa and Karnataka as of now for product sale. So we have tapped those markets and we are continuously increasing the network there in order to increase the brand visibility in these states also. And for diversification, Gokul Select we will be taking in Goa and Karnataka, and apart from that in upcoming time we will be diversifying our portfolio more, and we will be coming with new products and new products in new categories also. So at last I would like to summarize this webinar by few points. So first point is which I would like to mention by my experience is do not try to become the clone of your competitor. Be nobody but yourself. So if maximum you can talk about the brand, maximum you should trust about your brand, have faith in your brand. So that will be very helpful for promoting milk or product sale of the company. हम लोग किसी को क्लोन नहीं करना है। अगर कोई किसी का ब्रांड का पैकेजिंग सपोज येलो कलर में बटर आ रहा है, तो हमको भी वही सेम कलर, सेम पैटर्न, सेम चीजें अगर हम करेंगे, उससे सेल बढ़ जाएगा। तो दिस इज अ वेरी ये बहुत गलत तरीका है सोचने का। ऐसा ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करके हम लोग अपना सेल नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मार्केट में, मुंबई मार्केट में बहुत से मिल्क ब्रांड्स ऐसे आए जिन्होंने गोकुल धन, गोकुल धाम, गोकुल के नाम पे, डिफरेंट नाम पे उन्होंने सेम पैकेजिंग रखकर दे हैव ट्राइड कि हम लोग गोकुल जैसा हमारा सेल हो जाएगा, बट वैसा नहीं होता है। ऑलरेडी कस्टमर को आपका ब्रांड नेम के साथ साथ आपकी ब्रांड क्वालिटी उनको पता है कि आपकी ब्रांड की क्वालिटी क्या है। तो वी शुड नॉट बिकम क्लोन ऑफ द कॉम्पिटिटर, बट वी शुड बी आवरसेल्फ। Then there is always a boost of distinction. There is always a point of distinction in each and every product. तो हमको अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको वो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि हमारे ब्रांड में, हमारे प्रोडक्ट में
ऐसा क्या पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है विच डिस्टिंक्ट आवरसेल्व्स विद अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच एवरीवन इन द कंपनी शुड नो, शुड बी नोइंग. एंड वो एक सेलिंग पॉइंट होता है जिससे कि हम प्रोडक्ट की बारे में आगे लोगों तक वो मैसेज हमको पहुंचाना है. थर्ड थिंग, एनर्जाइज एम्प्लॉयज. टेक एडवांटेज ऑफ इंटरनल ब्रांड एम्बेसडर्स. जो हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, दे आर द इंटरनल ब्रांड एम्बेसडर्स. तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्टनेस होता है बिटवीन दी कंपनीज. तो कोई एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से बूस्ट कर रही है, किस तरह से आगे उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के तरीके बता रही हैं, किस तरह से उनको एनर्जाइज कर रही हैं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है टू डिसाइड कि हमारी ब्रांड या हमारी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रहा है मार्केट में. देन प्लान एंड डू. Whatever we are planning today, we should think about the implementation and we should be acting on it because actions are louder than words. So जो भी हमने प्लान किया है कि हम ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, even if we are failing in that strategy, but we should go with that strategy. We should at least implement it. Until unless we don't try, we don't get the result. So this is the thing we should keep in mind. Next, don't take your customers for granted. अगर हम जैसे दूध की भी मैं बात करूं तो दूध में भी वी आर नेवर टेकिंग आवर कस्टमर्स फॉर ग्रांटेड. हमको अपने चैनल पार्टनर से, अपने कस्टमर से वी शुड बी देयर विद रेगुलर टच, उनके साथ रखना पड़ेगा. उनको उनकी जो लॉयल्टी है हमारे ब्रांड्स के साथ में, हमारे बिजनेस के साथ में, वी शुड अप्रिशिएट दैट लॉयल्टी एंड वी शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि वो अभी तक हमारी ब्रांड से जुड़े हुए हैं. तो वी शुड मीट देम, वी शुड ग्रीट देम एंड ऑन रेगुलर बेसिस. Help customers to remain connected with the brand. So more you will connect with the customer, more customer engagement activities जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर आपकी ब्रांड से कनेक्ट रहेंगे. चाहे वो दूध हो, चाहे प्रोडक्ट हो, हम कुछ भी मार्केट में दूध प्रोडक्ट जो भी लेके जा रहे हैं, वी शुड बी कनेक्टेड विद द कस्टमर. एंड लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट पॉइंट, talk about your brand. So not only talk about your brand in company or with your colleagues, but also with your relatives, with your friends, everyone you are meeting, you should talk about the brand, so that because word of mouth publicity is the greatest publicity, greatest जो होता है ना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कि हम अपने ब्रांड का नाम और आगे तक लेके जा सकते हैं. अगर हमको जो भी प्रमोट करना अपनी ब्रांड को, वी शुड प्रमोट टू द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर दैट जो कोऑपरेटिव डेयरी है, जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, जो इसका मॉडल है, वो अभी तक लोगों को पता नहीं है. अभी तक मार्केट में लोगों को, कस्टमर्स को, इवन नॉट इवन रिटेलर्स, नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नोइंग किस तरह से कोऑपरेटिव डेयरी चलती है. तो दिस मैसेज ऑल्सो शुड बी कन्वेड टू द कस्टमर्स एज वेल एज रिटेलर्स कि हम लोग अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कोऑपरेटिव डेयरी का, तो वी आर हेल्पिंग फार्मर्स बाय परचेजिंग द प्रोडक्ट और द मिल्क. So this message should also be conveyed to the to all of the customers and channel partners. Thank you very much. Thank you, Namrata ji. Very good, excellent, outstanding presentation and eye opener. एक चीज बहुत पसंद आई जी सर, कि आपका वो जो ब्लाइंड टेस्ट है वो कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है. जी सर. एंड सेकंड कंसेप्ट तो जो टॉक अबाउट योर brand, it is also a very good idea which I think other cooperatives also should follow. सर एक्चुअली हम लोग जितना लोगों से मिलते हैं तो हमको उतना ही बताना चाहिए अपने ब्रांड के बारे में, बिकॉज जो कोई भी हम चैनल फॉलो करें, वी विल नॉट बी एबल टू रीच टू सो मेनी कस्टमर्स, सो मेनी पीपल, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट एट अ सिंगल टाइम. सो हम लोग जितना अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सब जगह हमें अपने ब्रांड के बारे में बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस. सो कलीग्स, बिफोर वी ओपन फॉर क्वेश्चंस, एक चीज समझ लीजिए, आईटी के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है तो दूध का सेक्टर है, और अगले 50 साल तक इसमें तेजी है. पैसा बनाने का सबसे अच्छा ये रास्ता है. तो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग्स. प्रोडक्ट और दूध के सेगमेंट में भी अपन लिक्विड मिल्क के ध्यान रखते हैं, पर वैल्यू एडेड सेगमेंट बहुत है. फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है, सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट है, थर्ड जनरेशन प्रोडक्ट है. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट. We'll talk about these things in detail sometimes later, but now let us go to questions. मनोज सोलंकी जी एक चीज पूछ रहे हैं कि is the effect on marketing by quality mark certification? Namrata ji, how you'll answer? Sorry sir, just can you please repeat the question for me? मनोज सोलंकी जी साहब पूछ रहे हैं
Is there any effect on marketing by quality mark certification? मार्केटिंग बाय क्वालिटी मार्क सर्टिफिकेशन. सो वो लेने से कुछ फर्क पड़ा? हाँ सर, एक्चुअली वो तो एक्चुअली जितना हम कस्टमर को बताते हैं कि हमारे पास जैसे अभी ये सर्टिफिकेट से हम लोग क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, एंड गोकुल का जो दूध है वो एक्चुअली ऑलरेडी कस्टमर्स तक, ये कस्टमर के माइंड में इट हैज ऑलरेडी बीइंग एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, वो ऑलरेडी शुद्धता से रिलेट करते ही हैं ब्रांड को. तो ऑलरेडी वो कस्टमर्स के सर माइंड में है ही कि क्वालिटी है प्रोडक्ट में, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, कंसिस्टेंसी इन टेस्ट, एंड फ्रॉम लास्ट सो मेनी years we have been making available to this milk with the same quality. This is itself a great phenomena जो कि गोकुल ने कस्टमर तक पहुंचाने में किया है. तो that was already in there in the customer's mind. दूसरा क्वेश्चन सुरभि जी पूछ रही हैं कि मैडम, हाउ डू यू रिसाइकल द पॉलीफिल्म एट गोकुल? Yes sir. अनिल जी पूछ रहे हैं ग्रोथ रेट कैसा है आपका रूरल एरिया में, सेल्स कैसे, वॉल्यूम्स कैसे आप पेनिट्रेट कर रही हैं और कैसा रिस्पॉन्स है? सर रूरल एरियाज में एक्चुअली कोल्हापुर में अगर मैं बात करूं या ओवरऑल मैं बात करूं तो 80-20% का 60-40% का मार्केट है. और रूरल एरियाज में एक्चुअली फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑफ रिटेल आउटलेट जो होता है, तो सिंगल पॉइंट से हमको वॉल्यूम ज़्यादा आता है कंपेयर टू अर्बन थिंग. डेंसिटी वहाँ पे रिटेल आउटलेट्स की कम रहेगी, बट वी विल गेट दी हायर वॉल्यूम्स पर रिटेलर. सो ग्रोथ रेट अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट में अभी मिल्क में वी आर गेटिंग अराउंड 3.5% ऑफ ग्रोथ, and product में we are getting around 20% of growth if I compare with last 2-3 years. And due to COVID, the growth rate has gone down, but it has not gone negative. Thank you, madam. My colleague Harshendra is keen to ask some few questions. Yes. Harshendra, over to you. Madam, it was a very powerful presentation, and questions to your from your presentation, it was very excellent. What I get to understand is that you have a customer centered Marketing approach. strategy. Yes. Yeah. Throughout. So I mean it appears that the idea is that customers are running the dairy. Yes sir. Which is true in its marketing sense. So actually Gokul is like balancing between the dairy farmers as well as customers. तो दोनों का Yes. हम we value for customers, we value for dairy farmers. Both the things are in balance. Yeah, wonderful. एक आपने कहा था कि कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है कि कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन का प्रोडक्ट है ये जी. आपको क्या लगता है कि लाइक व्हाट कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कस्टमर इज ओनली कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. वो कौन बना रहा है नहीं, आई मीन ही इज नॉट दैट कंसर्न्ड, बट आई मीन टू से हाउ, आई मीन कुछ एम आई रॉन्ग? आई मीन सर एक्चुअली जो दो चीजें आती है इसमें. पहला एक तो जैसे जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, फर्स्ट थिंग मैं उनके बारे में बात करूंगी कि चैनल पार्टनर्स को भी, जैसे अगर मैं किसी शॉप पे अपना प्रोडक्ट लेके हम लोग जाते हैं तो वो बात करते हैं कि हमें इसमें इतना मार्जिन मिल रहा है, हमें इसमें ये मिल रहा है, वो मिल रहा है. इस तरह से वो हमारे प्रोडक्ट को पहले ही मतलब अगर हमारा तो चलो फिर भी गोकुल का नाम है, ब्रांड है, दूध का नाम है, इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी तो एटलीस्ट हमको मिल जाती है. बट अगर सपोज अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके जाते हैं मार्केट में जिसमें मार्जिन कम है और जो थोड़ा अननोन सा ब्रांड है सपोज, तो उसमें वो जो मार्जिन वाला पॉइंट वो बोलते हैं, तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं उनको कि सर आप ये कोऑपरेटिव डेयरी का प्रोडक्ट है, हम लोग कोऑपरेटिव डेयरी में काम कर रहे हैं, एंड हम लोग जो अगर 100 रुपये हम लोग कमा रहे हैं तो 85 रुपीज फार्मर्स को जा रहा है, और जो आप अगर ये प्रोडक्ट हमारा रखते हैं तो यू आर हेल्पिंग फार्मर्स बाय दैट. और ये एक मैसेज होता है जो हम फर्स्ट चैनल पार्टनर्स को कन्वे करते हैं. सेकेंड थिंग, अगर हमें यही चीज कन्वे करनी है टू कस्टमर्स, तो जितना इफेक्ट इसमें चैनल पार्टनर्स के माइंड में होगा उससे डबल इफेक्ट होगा इन द माइंड ऑफ कस्टमर. कस्टमर को अगर ये पता चलेगा
no doubt they are looking for quality, no doubt they are looking for nutritional value of the product, or they are looking for the ingredients and freshness of the product. They are looking at price of the product. But if they get to know that by buying this product, we are helping farmer, we are helping a cooperative dairy जो कि दूध संघ चल रहा है, तो एक्चुअली इसमें सर वो इमोशनल कनेक्ट वाली बात आ जाती है. हाँ, वेरी वेल आंसर. जो है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड. नाउ आई विल ask Vishnu to propose the vote of thanks. So thank you, Namrata. Thank you so much. I'm sure that all this your initiatives that you are doing there will be inspiring other unions across India. Thank you so much once again. And I also take this opportunity to thank Sri Rajesh Gupta, Group Head Cooperative Services, and Sri Ashok Gupta, Group Head Cooperative Training in DDB, for helping us to arrange this webinar. I also thank all the distinguished participants of this webinar. Thank you so much. See you all next week. We'll share the details of the next webinar as soon as possible. Thank you. Thank you, everyone.